کتنے دن کو آف ملا ہوا ہے تمہیں آفس سے؟ جب تک میرے باس کی شادی چل رہی ہے۔ سچ بتاؤں تو میں بہت ہی خوش ہوں اس کی شادی سے۔ اس کی توجہ تو ہٹے گی مجھ پر سے۔ مالٹے چھیل کر اس کی قاشے منہ میں ڈالتے ہوئے وہ کافی ریلیکس انداز میں بیٹھی اس سے محو گفتگو تھی۔ جب بھی اس کے پاس فری وقت ہوتا وہ کچھ دیر ماشا کے پاس ضرور گزارنے آیا کرتی تھی۔ تمہیں اتنا برا کیوں لگتا ہے تمہارا باس؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں۔ اور ناپسندیدگی کی وجہ کیا ہے؟ وہ میرے کلاس فیلو بھی رہ چکا ہے ماشا، اور یونی ٹائم پر تو ہماری بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے ہم ایک دوسرے کو تنگ کرنے اور نیچے دکھانے کا۔ اتنے ٹائم بعد جب آمنا سامنا ہوا تو اس سے موقع مل گیا مجھے تنگ کرنے کا، تو بس فضول میں میرے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اس کا انداز بیزاری لیے ہوئے تھا۔ اگر تو اس کی شادی نہ ہو رہی ہوتی تو میں یہی کہتی کہ وہ یقیناً تم میں انٹرسٹڈ ہوگا، جبھی تو تمہارا اتنا خیال کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس کی تو شادی ہو رہی ہے۔ انٹرسٹڈ، وہ بھی مجھ میں؟ کیا فضول بات کر رہی ہو ماشا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہرما کی پیشانی پر بل پڑے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب دیکھو، جس طرح سے تم اس کی باتیں کرتی ہو، وہ تمہاری اتنی کیئر کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر تمہیں ٹوکتا بھی نہیں ہے باس کہنے کے لیے۔ تم اس کے مینیجر کے سامنے بھی اس کی عزت نہیں کرتی، اور وہ پھر بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ یہ پہلو تو واقعی غور طلب تھا، لیکن وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اگر وہ تمہیں ناپسند کرتا تو تمہیں جاب سے نہ نکال دیتا، لیکن وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے تمہیں روک رکھنے کے لیے۔ لیکن وہ کسی اور سے شادی کر رہا ہے، ماشا کے پرجوشی سے کہنے پر اس نے جتا کر کہا۔ ہاں، یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ معلوم ہے مجھے، وہ صرف طنز کھا رہا ہے مجھ پر۔ میری زندگی نے جو پلٹا کھایا ہے وہ واقف ہے اس سے۔ وہ زہرخند لہجے میں بولی۔ تم اوور تھنک کر رہی ہو، ماشا نے خفگی سے کہا، لیکن وہ کوئی جواب دیے بنا چپ چاپ بچا ہوا مالٹا کھاتی رہی۔ اچھا، موڈ تو نہ خراب کرو۔ اسے چپ لگ جانے پر وہ لجاجت سے بولی۔ ٹھیک ہے میرا موڈ، وہ سابقہ انداز میں ہی بولی۔ امام صاحب کے حجرے میں موجود وہ ان کے سامنے بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر کچھ الجھن اور پریشانی تھی۔ شاہ صاحب کے تاثرات بھی اس سے مختلف نہ تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ فاطم ایسا کر سکتا ہے۔ وہ سخت بے یقینی کا شکار لگتے تھے۔ مجھے تو کافی تشویش ہو رہی ہے۔ وہ کافی ضدی اور شدت پسند ہے۔ پریشان نہ ہو داریان، ایک بار وہ آ جائے تو ہم اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ دعا کیجیے گا شاہ صاحب کہ جو میں نے سنا ہے وہ سچ نہ ہو۔ اگر وہی حقیقت ہوئی تو بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ نے چاہا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اسے تسلی دیتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھا، اور کچھ ہی لمحوں میں وہاں جانی پہچانی سی خوشبو پھیل گئی۔ السلام علیکم، اس نے ظاہر ہوتے ہوئے ان دونوں پر سلامتی بھیجی، لیکن جواباً داریان اور شاہ صاحب نے اتنی گرم جوشی سے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ کیا کوئی پریشانی ہے؟ سمجھ تو وہ گیا تھا، لیکن پھر بھی ناسمجھی سے پوچھا۔ فاطم، تمہیں معلوم ہے نا اللہ نے جنات کی حدود قائم کر رکھی ہیں، جنہوں کو اجازت نہیں ہے انسانوں کو تنگ کرنے کی، ان کے ساتھ شرارتیں کرنے اور ان سے شادی کرنے کی۔ وہ لب بھینچ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلوں کی لپک سی دکھائی دینے لگی۔ مجھے پسند ہے وہ لڑکی، لیکن وہ انسان ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے نہایت افسوس ہو رہا ہے۔ تمہیں معلوم بھی ہے تمہارا رتبہ کیا ہے، اس کے باوجود تم یہ بچکانہ بات کر رہے ہو۔ میں مجبور ہوں، کم از کم اس کے معاملے میں بے بس ہوں۔ میں تمہیں پھر بھی خبردار کروں گا کہ تم باز آ جاؤ، وہ کام مت کرو جو تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ ان دونوں کی گفتگو کے دوران وہ خاموشی سے انہیں بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ اب جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ والا نکاح نامہ جاری نہیں ہے، تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ریشام کا شرعی اور قانونی شوہر ہے۔ میز پر پڑے نکاح نامے کو دیکھتے ہوئے وحاج تایا نے اپنا خیال ظاہر کیا، لیکن یہ بات ابھی تک ثابت نہیں ہوئی ہے کہ وہ سعادت غازی کا پوتا ہونے کی جو بکواس کر رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ بابا کو تو ایک چپ سی لگ گئی ہے، وہ کسی سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، خود کو اپنے کمرے میں محصور کر لیا ہے۔ ضمیر غازی نے پیشانی مسلتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ دادا جان کے انداز سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ جب جھوٹ نہیں بول رہا تو پھر یوسف بن کر وہ ڈرامہ لگانے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ وہ تلخی سے بولے۔ انتہائی مکار انسان ہے، ساری پلاننگ کر کے یہاں داخل ہوا تھا۔ حویلی کے ملازمین تک تو اس نے اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ حویلی کی ایک ایک بات سے وہ باخبر ہے، اسے ہماری ساری خامیوں کے بارے میں معلوم ہوگا۔ یقیناً اتنا عرصہ جو اس نے یوسف بن کے یہاں گزارا ہے، یوں ہی تو نہیں وقت برباد کیا ہوگا۔ بے شک تم صحیح کہہ رہے ہو، اس سے ہماری سب خامیوں اور کمزوریوں کے بارے میں معلوم ہے، جبھی تو ریشام کا استعمال کیا اس نے۔ وحاج تایا نے سالار کی بات سے پورا اتفاق کیا۔ کل ہی خلا کا نوٹس بھجوائیں اسے۔ ریشام کو اس شخص کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونے دیا جا سکتا بالکل بھی، اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری اسے شادی ہونے والی تھی۔
वो पहले इस हवेली की इज्जत है, फिर मेरी इज्जत है। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी मुंह उठा के आए और कुछ भी बकवास करके चला जाए। अब वो जहरखुन लहजे में बोला, ये मामला भी निपट ही जाएगा, और ये मसला ख़त्म हुआ तो रेशम और सालार के साथ ही बरीजे की शादी का भी बंदोबस्त करो। बरीजे की शादी? उसने अभी तो दाखिला लिया है आगे। वजाहत गाजी के नखवत से कहने पर फाज ने नासमझी और हैरानगी से कहा, बस पढ़ लिया उसने जितना पढ़ना था। एक ने पढ़कर क्या निहाल कर दिया हमें, जो उसे भी अब यूनिवर्सिटी भेजना शुरू कर दें। लेकिन इस सब में बरीजे की कोई गलती नहीं है बाबा। उस गुनाह की तलाफी वो क्यों करे जो उसने किया ही नहीं है। मुझसे बहस मत करो अबीर, जो मैंने कह दिया बस कह दिया। बाबा जान से मैं खुद बात कर लूंगा। बरीजे की शादी भी रेशाम के साथ ही होगी। उन्होंने जैसे बात ही खत्म कर दी थी। इस सारी गुफ्तगू के दौरान वो जो खामोश सा सिंगल सोफे पर पीछे को टेक लगाए बैठा उन सबको सुन रहा था। वजाहत गाजी की बात पर वो यकलक सीधा हो बैठा। बरीजे की शादी मुझसे होगी? वो जब बोला तो उसका अंदाज सर्दो सपाट था। तुम्हारे अलावा और किससे करेंगे? जहां अबीर ने बेजारी से कहा, वहां गाजी ने नागवारी से आशिर को देखा। तुमने ये खुशफहमी कब से पाल ली कि मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करूंगा? वहां गाजी के तमस्खुर से कहने पर वो सब बुरी तरह चौंके थे। ये बात तो बड़ों के दरमियान शुरू से तय थी कि रेशाम की शादी सालार से होगी और बरीजे की आशिर से। लेकिन वहाज गाजी अपनी बात से फिर रहे थे, उस फैसले से इनकार कर रहे थे जो सादत गाजी ने किया था। आशिर उनका भांजा था, उन्हें अजीज भी था, लेकिन अपनी बेटी के लिए मौजू नहीं रखता था, क्योंकि वो काफी गैर जिम्मेदार और लाउबाली से नेचर का मालिक था। यही बात उन्हें खलती थी कि वो अपनी जिंदगी में संजीदा क्यों नहीं होता। मुझसे क्यों नहीं हो सकती उसकी शादी? उसका अंदाज पुरतपे सा था। तो मुझे इस काबिल नहीं लगते कि मेरी बेटी से शादी करो। वो तनफ्फुर से बोले, ये आप लोग किस बहस में पड़ गए हैं? सालार ने नापसंदीदगी से इस मौका बहस को देखा। आप चाहें या ना चाहें, आपकी बेटी की शादी मुझसे ही होगी। वो सर उठाकर बोला तो उसका चेहरा और अंदाज सफाकी लिए हुए था। आंखों में अलग शोले दहक रहे थे। बात करने की तमीज भी भूल बैठे हो क्या आशिर? वजाहत गाजी ने गुस्से से उसे घुरका। अगर उसकी शादी कहीं और करने का सोचा भी तो यहीं क़यामत ढा दूंगा। क्या पागल हो गए हो तुम? सालार ने सख्त नागवारी से कहते हुए उसकी जानिब कदम बढ़ाने चाहे थे, जब भी अबीर ने फुर्ती से उसे बाजू से पकड़कर आशिर के करीब जाने से रोका। ठहर जाओ, आशिर नहीं है वो। अबीर के चेहरे पर पसीना नमूदार हो रहा था। क्या मतलब आशिर नहीं है? कौन है फिर? वो तड़क कर बोला। लेकिन तभी उसने बड़ी सी शीशे की सेंट्रल टेबल एक हाथ से उठाकर जारहाना अंदाज में पलट दी थी, जो इतनी भारी थी कि उसे खिसकाने के लिए भी 3-4 लोग दरकार होते थे। वो सब अभी दंग नजरों से उसे देख ही रहे थे कि साथ ही अचानक की ग्लास वॉल और बड़ी सी खिड़कियों के शीशे छन्नाके से टूटे। एक तेज सी आवाज सारे में फैल गई थी। सारे लाइट्स खुद ब खुद बंद खोल होना शुरू हो चुकी थी। क्या हो गया है इसे? वो सब शदीद हैरान होने के साथ साथ खौफजदा भी हो चुके थे। यूं लगता था जाने कितनी जोरावर कुव्वतें उसके अंदर आ गई हों। अभी वो रेशाम के मसले से ही ना निकल पाए थे। ये नई अफ्तादा पड़ी थी। जब कल सुबह तुम घर से निकल रही थी तो तब तो ये सूट नहीं पहना हुआ था तुमने। ग्लास लबों से लगाए पानी के घूंट उसके हलक में ही अटक गए थे, जिन्हें बमुश्किल नीचे उतारते हुए उसने ग्लास साइड टेबल पर रख के सारा को देखा, जो जांचती नजरों से उसे देख रही थी। और ये शाल भी तुम्हारी नहीं है ना? अब कि उसने गौर से उस मर्दाना शाल को देखते हुए इस्तफसार किया, जो रेशाम ने अभी भी खुद के गिर्द लपेटी हुई थी। उससे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था कि वो क्या कहे। अब ये तो कह नहीं सकती थी कि अनस गाजी ने उसकी आमद से पहले ही पूरी वार्डरोब नए मलबूसात से भर रखी थी। किन बातों में पड़ रही हो सारा? इसे आराम करने दो। रायमा गाजी ने उसके चेहरे पर तजब्जुब के रंग देखे तो सारा से बोली। वो सब उससे ऐसे हमदर्दी कर रहे थे जैसे अनस उसे सच में गन पॉइंट पे अगवा कर ले गया हो। जाने क्या होता अगर उन सबको पता चल जाता कि वो अपनी मर्जी से इस हवेली की इज्जत को अपने पैरों तले रोंद कर निकली थी। जारिया गाजी तो कितनी ही देर उसे खुद से लिपटाए रोती रही थी। वो इंसान इस हवेली की इज्जतों से खेल रहा है और ये उसकी शाल को सीने से लगा कर बैठी है। ये बात इतनी सीधी नहीं है जितनी ये दोनों बनाकर पेश कर रहे हैं। कुछ तो जरूर है जो ये भी छुपा रही है, और वो यूसुफ उर्फ अनस गाजी भी छुपा रहा है। सफीना ताई ने घाक नजरों से रेशाम के चेहरे के उतार चढ़ाव देखते हुए पुरसोच और तेज लहजे में कहा तो उससे मदद तलब नजरों से रायमा को देखा। भाभी, जो बात भी होगी वो सामने आई ही जाएगी। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उन्होंने लहजे की नरमी रखने की कोशिश करते हुए कहा, वरना सफीना के इतने सवाल करने पर वो भी नागवारी महसूस कर रही थी, लेकिन उनकी फितरत से वाकिफ थी, इसलिए जवाबन कुछ नहीं कह रही थी। वो नखुआ से हंकारा भरते हुए वहां से निकली तो उनके पीछे रायमा समेत सभी निकल गई थी। सिर्फ बरीज़े उसके पास मौजूद थी।
شکست خوردہ سے سعادت غازی نے خود کو اپنے کمرے میں مقید کر لیا تھا۔ ریشام کے علاوہ انہوں نے کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ فکر مندی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی، جن کے چہرے پر گہرا کرب تھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا دادا جان؟ کیا وہ سچ میں آپ کا پوتا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں ان سے استفسار کیے جا رہی تھی، جو آنکھیں موندے بیٹھ کی بیگ سے ٹیک لگائے ماضی کے اوراق کھول کر پڑھنا شروع ہو چکے تھے۔ ماضی۔ گہری کالی رات میں تیز بارش کی بوچھاڑوں نے ہر طرف جل تھل سا مچا دیا تھا۔ بجلی کے کڑکنے سے لمحے بھر کے لیے سارے میں خوفناک سی روشنی پھیل جاتی تھی، پھر دوسرے ہی سیکنڈ وہی گھپ اندھیرا چھا جاتا تھا۔ گھر کی اندرونی عمارت میں زہرا خاتون وجاہت اور وہاج کے ساتھ بے خبر سوئی ہوئی تھی، جن کی عمریں 2 اور 4 سال کے لگ بھگ تھیں، جبکہ سعادت غازی باہر دالان میں شیڈ کے نیچے کھڑے اس عورت کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے وہاں سے چلے جانے کے لیے کہہ رہے تھے، جس نے ایک چھوٹے سے روتے بلکتے بچے کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے خون سے کیسے ناواقف ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کا ہی بیٹا ہے، میرا اور آپ کا۔ بس بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس۔ 2 منٹ میں یہاں سے نکل جاؤ، اور دوبارہ تم نے یہاں قدم رکھنے کی جرت بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صفاقی سے کہتے ہوئے انہوں نے اس عورت کو بے دردی سے بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے دروازے سے باہر نکال کر کنڈی لگا دی تھی۔ انہیں نہیں معلوم پڑا کہ وہ عورت کتنی دیر تک اس طوفانی بارش میں اس چوکھٹ پر بیٹھی اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ خود بھی بلک بلک کر روتی رہی تھی۔ ریشام کا دل رز رہا تھا، آنکھوں میں نمکین پانی جمع تھا۔ لب کاٹتے ہوئے وہ انہیں دھیمی آواز میں کہتے ہوئے سن رہی تھی۔ اس کا نام حلیمہ تھا۔ ماضی کا کرب آنسو کی شکل میں سعادت غازی کی آنکھ سے ٹپکا۔ تمہاری دادی زہرا سے میری شادی میرے ماں باپ نے اپنی مرضی سے کروائی تھی۔ شادی کے کچھ ہی وقت بعد جب مجھ پر ذمہ داریاں ڈالی گئیں تو میں نے بھی گاؤں جا کر زمینوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ واپسی میں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا تھا۔ رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ جہاں ہماری رہائش ہوا کرتی تھی وہ جگہ بھی دور تھی، وہاں تک پیدل جانا بھی ممکن نہ تھا۔ ایسا میں حلیمہ کے باپ نے مجھے رات اپنے گھر میں ٹھہرایا، میرے آرام کا ہر ممکن سامان کیا۔ جب پہلی بار اسے دیکھا تو مجھے لگا جیسے میری منزل مقصود مل گئی ہو۔ میں نے بہانے سے ان کے گھر جانا شروع کر دیا۔ اس کا باپ بھی یہ بات سمجھ گیا کہ میں اس میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے حلیمہ سے شادی کرنے کو کہہ دیا۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کہوں، کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسی کا فائدہ اٹھا کر حلیمہ سے نکاح کر لیا، لیکن اسے حویلی نہیں لے کر آیا کبھی۔ جب بھی گاؤں جاتا وہ مجھ سے ایک ہی فرمائش کرتی کہ اسے حویلی جانا ہے۔ میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اسے ٹال دیتا۔ پھر جب اس کے باپ نے بھی دبے لفظوں میں کہنا شروع کیا تو مجھے بیزاری ہونے لگی، کیونکہ حلیمہ میں مجھے پہلے جیسی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میں اپنی خاندانی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے گاؤں جانا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ جب کبھی زمینوں پر جانا ہوتا تو میں وہیں سے پلٹ آتا، حلیمہ کے پاس نہیں جایا کرتا تھا۔ ایک روز اطلاع ملی کہ حلیمہ کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں تو اس کی پہلے ہی نہیں تھی۔ مجھے افسوس ہوا، خود کو ملامت کی، پھر ارادہ بھی کیا وہاں جانے کا، لیکن زہرا کی طبیعت خرابی کی وجہ سے میں جا نہیں سکا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ میرے ذہن سے محو ہوتی بالکل ہی نکل گئی۔ میں اسے بھول چکا تھا، لیکن پھر اس نے حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے وہ رکے۔ میں ڈر گیا تھا، اگر تو اس کے بارے میں میرے گھر والے جان جاتے تو میرے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی تھیں۔ زہرا مجھ سے بدظن ہو جاتی، اور سب سے بڑھ کر مجھے جائیداد سے عاق کر دیا جاتا، چھپ کر دوسری شادی کرنے پر۔ اس لیے میں نے اسے دھتکار دیا اور اسے ڈرا دھمکا کر وہاں سے بھیج دیا۔ آپ نے دوبارہ کبھی انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی دادا؟ ان کی آپ بیتی سنتی ریشام نے بھیگے لہجے میں بولا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد میرے ضمیر نے مجھے ملامت کرنا شروع کر دیا۔ میرا گناہ مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، اپنے سارے ذرائع استعمال کیے اسے تلاش کرنے میں، لیکن اس دن کے بعد وہ دوبارہ نہیں ملی۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہونے کے باوجود بھی میرا دل اس بچے کے لیے روتا تھا جو برستی بارش میں بھوک سے بلک رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ بس وہ کہیں سے میرے پاس آ جائے اور میں اسے سینے سے لگا لوں۔ وہ میرا ہی خون تھا، میرا بیٹا تھا جسے وہ رضا کہہ کر پکار رہی تھی۔ اور جب میں امیدیں کھو بیٹھا تھا تو اللہ نے کیسے مجھے اس سے ملا دیا۔ برستی آنکھوں سے انہوں نے ریشام کو دیکھا۔ اتنے عرصے بعد مجھے اس کے زندہ ہونے کی نوید مل گئی۔ معلوم نہیں حلیمہ حیات ہوگی یا نہیں۔ انس کو فون کرو، تم اس سے کہو اپنے باپ کو میرے پاس لے کر آئے۔ ریشام کے ہاتھ پکڑے وہ کسی بچے کی طرح اس سے التجا کر رہا تھا۔ یہ چین؟ سعادت غازی نے بری طرح چونک کے اس کے گلے میں موجود اس چین کو دیکھا۔ یہ
रेशम उसको उंगलियों में थामे ये कहने में हिचकिचा रही थी कि वो अनस ने उसे पहनाई है। हलीमा को दिया गया ये मेरा वाहिद तोहफा था रेशम। उनकी बात पर वो दंग रह गई थी। हवेली की अंदरूनी इमारत में मौजूद लोगों को खबर ही नहीं थी कि बाहर बैठक में क्या तूफान आया हुआ था। सरबराही सोफे पर टांग रखे बैठा वो इस वक्त अपने आप में नहीं लग रहा था। लहू छलकाती निगाहों से गैर मरई नुक्ते को देखता उन सब का खून खुश्क किया जा रहा था। हवेली में इतना सब कुछ होता रहा और तुमने हमें कुछ बताने की जरूरत ही महसूस न की। वजाहत गाजी अबीर पर बरस पड़े थे जिसने सारी बात उनके गोश गुजार की थी। सॉरी बाबा, लेकिन मुझे खुद बहुत बाद में पता चला था, वो निदामत से बोला। कुछ देर पहले जो बैठक पुरतईश और आराइशों से रास्ता थी वो अब जंग के बाद का मंजर पेश कर रही थी। फातिम ने जी भर के अपना इश्तिहार वहां निकाला था जो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मेरा फोन देखा है तुमने? उसने रूम में आते ही बेसब्री से बरीजे से पूछा। तुम्हारा फोन तो अबीर भाई के पास है। उनके पास? रेशम पहले चौंकी। उनके पास क्यों है मेरा फोन? फिर हैरानगी और नापसंदीदगी से बोली, तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा था, ना ही तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा था, तो उन्होंने मुझसे मांगा था, शायद उससे कुछ पता चल जाए। ओह, उसने गहरी सांस भरी। इतना हौसला नहीं था उसमें कि जाकर अबीर से अपने फ़ोन के बारे में सवाल करती। तुम्हारा फ़ोन दो मुझे। किससे बात करनी है तुम्हें? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मुझे तुमसे किससे बात करनी है? मत बताओ, मालूम है मुझे यूसुफ को ही करनी होगी। वैसे मानना पड़ेगा ये पहला इंसान है जिसने सादेन हवेली की ईंट से ईंट बजाई है। चुप रहो बरीजे और बाहर जाओ तुम। साइड टेबल पर पड़ा उसका फ़ोन उठाकर वो बेजारी से टोक गई। ऐसी कौन सी बातें करनी है तुम्हें जो मेरे सामने नहीं हो सकती? वो छेड़ने से बाज नहीं आई थी। जा रही हो या नहीं? रेशम ने घूरते हुए कहा। अच्छा भाई, जा रही हूँ, कर लो तुम सुकून से बात। वो उसे छोड़कर रूम से बाहर निकल गई थी। वो इस वक्त थाने में डीएसपी के रूम में मौजूद रजा गाजी से डांट सुनने में मसरूफ था। आखिर तुम्हें जरूरत ही क्या थी वहां अकेले जाने की? अकेले नहीं गया था बाबा, मालूम है मुझे, पूरी फौज को लेकर गए थे अपने साथ। लेकिन तुम गए ही क्यों थे वहां जब मैंने तुम्हें मना कर रखा था? रेशम को छोड़ने गया था, वो वापस जाना चाहती थी। उसे मालूम पड़ गया था कि मैं यूसुफ नहीं अनस ही हूँ। तुमने अपनी मर्जी जो करना था कर लिया, लेकिन अब से वही होगा जो वो बच्ची चाहेगी। अगर वो तुमसे अलहदगी भी चाहेगी तो तुम उसे प्रेशराइज किए बिना उसे डिवोर्स दोगे। वो उंगली उठाकर बावर करवाते हुए बोले, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। वो उसकी इतनी फर्मा बरदारी पर उसे घूर कर रह गए। अब उन्हें क्या मालूम कि उनके लाडले बेटे ने उस बच्ची से ब्लैंक पेपर पर साइन करवा रखे थे। थाने से बाहर आते वो पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल ही रहा था कि जब ही हाथ में मौजूद फ़ोन वाइब्रेट हुआ। नंबर अननोन था, फिर भी उसने कॉल पिक कर ली इस उम्मीद पर कि शायद उसे दुश्मनी जहाँ का फ़ोन हो। पहले ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? उससे छूटते ही पूछा। आपको जाने की इतनी जल्दी थी, आप कुछ देर रुक जाती तो मैं बता देता आपको सारी बात। दूसरी जानिब उसका लहजा काफ़ी खुशगवार था। दादा जान बुला रहे हैं तुम्हारे बाबा को, रेशम ने आहिस्तगी से कहा। और उनके बाकी बेटे? वो सब तो मीटिंग में मसरूफ़ हैं, कल ही खुला का नोटिस भेजने का इरादा है उनका। खिड़की के पास खड़ी वो बाहर का मंजर देखते हुए गले में पड़ी चेन को 2 उंगलियों से छेड़ती हुई कह रही थी, पहले तो आप ही दस्तखत करेंगी? उसका अंदाज जताने वाला और बहुत कुछ याद करवाने वाला था। तुम्हें जमानत दी थी, मैं कैसे वो पेपर साइन कर सकती हूँ? लम्हे को उसने तमानियत से आंखें बंद की थी। दिल में ढेरों सुकून उतरता महसूस हुआ था, लेकिन कहीं एक अनजाना सा डर भी था। और अगर किसी ने दबाव डाला तो? दादा जान के होते हुए कोई मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकता। और अगर फिर भी हालात साजगार ना हुए तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा आपको लेने। उसकी बात काट कर वो तुरंत बोला, तो मैं जब प्रोटोकॉल अपने साथ लेकर आते हो कि गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि सादैन हवेली पर न जाने किसने हमला कर दिया है। रेशम ने मसनूई खफगी से कहा, आपकी शान में इतना प्रोटोकॉल लाना तो बनता ही है। उसका गहरा अंदाज उसकी धड़कन की रफ्तार बढ़ा गया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने अरसे तक गरीबी और मुफलिसी का रोना रोते रहे मेरे सामने। उसका गुस्सा उठ कर आया। रेशम बीबी, मेरे असल मकसद से तो आप आगाह हो ही गई हैं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे इंतकाम की जद में आ पाएं, इसीलिए आपको नज़रअंदाज करता रहता था कि शायद आप पीछे हट जाएं। लेकिन आपने तो मुझे अपनी ही जान में फंसा लिया। आपने मेरे मकसद के दरमियान में आकर मुझे कमज़ोर कर दिया। तुम तो जैसे बहुत मासूम और शरीफ इंसान थे ना। वो तीखे लहजे में बोली, कोई शक नहीं, जब मैं पहली बार हवेली में दाखिल हुआ था तो मैं ऐसा ही था। लेकिन आपकी नजर करम मुझ पर पड़ने की देर थी कि आपकी सोबत में रह रहकर मैं भी आपके जैसा हो गया। रहने दो बस, अपनी गलती तो मानती ही का हूँ। वो नखुवत से बोली, इंतज़ार कीजिएगा, मैं बहुत जल्द आऊँगा।
भारी लबो लहजे में कहते हुए वो रात का मुनक़ता कर चुका था, लेकिन वो फिर भी फोन को कान से लगाए आंखें बंद किए खड़ी थी। उसका इंतजार तो अभी से शुरू हो चुका था। वो एक पोश और सत्सब सा इलाका था, जहां की साफ सुथरी सड़कों पर उसकी गाड़ी दौड़ती दिखाई दे रही थी। डैशबोर्ड पर पड़े फोन की स्क्रीन पर गूगल मैप उसे रास्ता दिखा रहा था। यकीनन जिस जगह वो जा रहा था उसके रास्तों से वो आशना नहीं था। चंद मिनटों बाद उसने बड़े से सफेद गेट के पास अपनी गाड़ी ले जाकर रोकी। आंखों पर से डार्क ग्लासेस उतारकर गिरेबान में अटकाते हुए वो फोन उठाकर बाहर निकल आया। एक नजर फोन की स्क्रीन को देखने के बाद दरवाजे के साथ ही लगी नेम प्लेट को देखा, जहां सुनहरी लफ्जों में गाजी मेंशन लिखा था, जिसके नीचे ही ब्रैकेट में डीएसपी रजा गाजी देखकर उसे इत्मीनान हो गया कि वो सही जगह पहुंचा है। 2 कदम आगे बढ़कर उसने बेल बजा दी। कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। वो चौंकते हुए उसे देख रहा था। जो दरवाजा खोले सवारियां नजरों से उसे देखती उसकी आमद का मकसद जानना चाहती थी। वो छोटी सी कम उम्र लड़की यकीनन अनस गाजी की बहन माशा गाजी ही थी। इंटरेस्टिंग। सालार के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सालार गाजी कहते हैं, क्या मैं आपके भाई से मिल सकता हूँ? वो काफी नरमी और खुशगवारी से पूछता उसे तजब्जुब का शिकार कर गया। आज से पहले कभी किसी ने इस दरवाजे पर आकर अनस के बारे में नहीं पूछा था। आप मेरे भाई को कैसे जानते हैं? वो उसके सरनेम पर बुरी तरह चौंक कर पूछ बैठी। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? किस बारे में नहीं बताया? यही कि मैं तुम्हारा कजन हूँ। मेरे कजन? मैंने तो आपको आज से पहले कभी देखा ही नहीं। आप मेरे कजन कैसे हो सकते हैं? वो अब मशकूक नजरों से उसे देख रही थी। मुहिद और दाइम को जल्द आने की यकीन दहानी करते हुए वो कोहनियों तक पहुंची हुई आस्तीनों को नीचे करते हुए मस्जिद जाने के लिए निकल रहा था। उसकी पेशानी और चेहरे से अभी भी वजू के कतरे चमक रहे थे। घर से निकलते ही जब बराबर में अनस के घर के पास खड़ी एक अनजान गाड़ी को देखा तो बुरी तरह चौंका। अपनी छठी इस पर खबरदार होते हुए वो तेजी से कदम उठाता हुआ वहां पहुंचा जहां माशा अभी भी आधा दरवाजा खोले उसे तफ्तीश कर रही थी। मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप जो कह रहे हैं वो सच है? उसकी उलझन ज़्यादा सी आवाज़ दारियान के कानों से भी टकराई। अभी सालार उसकी बात का जवाब देने ही लगा था, जब ही उसकी आमद पर खामोश होकर उसे देखने लगा। वही माशा भी उसे देखकर घबरा उठी थी। पहले की निस्बत अब उसे दारियान से खौफ आता था। दाइम और मोहित की जुबानी वो कहानियां सुनकर उसे पक्का यकीन हो चला था कि दारियान का ताल्लुक सिर्फ जिन्नात से नहीं है, बल्कि वो खुद भी कोई छोटा मोटा सा जिन ही है। अंदर जाओ, उसने संजीदगी से माशा को हुक्म जारी किया। ये खुद को मेरे कज़न कह रहे हैं और मैंने कहा ना अंदर जाओ। उसके सख्त अंदाज पर माशा के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे। कीनत और नजरों से देखती वो दरवाज़ा पटक कर बंद करती अंदर चली गई। आपकी तारीफ? सालार ने सर से पैर तक उस सफ़ेद कुर्ता शलवार में मौजूद दारियान को तका, जो चेहरे के नकूश से फॉरनर लगता था। दारियान दुरानी नाम है मेरा। मैं अनस गाजी का दोस्त हूँ। उसकी नीली आंखों की तरह उसकी आवाज़ में भी नरमी का शायबा तक न था। मैं यहाँ अनस से मिलने आया था, शायद वो घर पर मौजूद नहीं है। उसे साफ लहजे में रवानी से उर्दू बोलते देख सालार ने सताइशी नज़रों से उसे देखने के बाद कहा, वो नहीं है लेकिन मैं हूँ। लेकिन मैं जिस सिलसिले में उससे बात करने आया था वो तुमसे नहीं कर सकता। लेकिन मैं बता चुका हूँ वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। मुझे इंतज़ार करने में कोई इशू नहीं है। उसका वहाँ जाने का इरादा नहीं लग रहा था। दारियान, मैंने कब से तुम्हें कह रखा है इन किताबों का आखिर कब ला कर दोगे? वो उस उभरी आवाज़ पर सालार गाजी का दिल धड़कना भूल गया था। वो जो कोई भी थी ये नहीं जानती थी कि दारियान के सामने कौन खड़ा है। उसे सिर्फ उसकी पोछ दिखाई दे रही थी। अगर शाम तक मेरी किताबें नहीं मिली तो खैर नहीं होगी तुम्हारी। वो अब काफ़ी संगीन अंदाज में उसे धमका रही थी। शाम से पहले ही ला दूंगा, पक्का? उसके यकीन दहानी करवाने पर भी उसे एतबार नहीं था। ये कौन है? साथ ही तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इशारों कनायों में से उसे दरियाफ्त किया, लेकिन दारियान के जवाब देने से पहले ही वो खुद ही रुख मोड़ गया। मेहरमा फटी फटी आंखों से उसे देखते हुए गिरते गिरते बची। उसके गुमान में भी नहीं था कि सालार गाजी उसे सरेराह भी मिल सकता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो शौकज़दा सी बोली। क्या तुम्हारा घर पास में ही है? उसके सवाल को यकसर अंदाज करते उसने इस्तफसार किया तो उसका सर खुद ब खुद अज़बात में हिल गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि नमाज में भी उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ था। नमाज पढ़ के जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचा तो तभी एक बाइक सवार ने उसके करीब अपनी बाइक लाकर रोकी। फिर हेलमेट उतारकर बालों में उंगलियां चलाते हुए गौर से दारियान की शक्ल देखी। बाबा से डांट तो मैंने सुनी है, चेहरा तुम्हारा क्यों उतरा हुआ है? क्या कोई मसला हो गया है? उसने नासमझी से पूछा। मसला खुद चलकर यहाँ पहुंच चुका है। क्या मतलब? कौन आया सादेन हवेली से? दारियान की बात पर उसने चौंक कर पूछा। वही जिसकी ना होने वाली बीवी को तुमने अपने निकाह में ले रखा है। उसके शाने ढीले पड़े।
अनस को मालूम था कि वो जरूर आएगा। वो खामोश बैठने वालों में से नहीं था। कहाँ पर है? क्या घर में है? तुम्हारी बहन ने उसे घर में घुसने ही नहीं दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका भी कोई कजन इस दुनिया में हो सकता है। दारियान के कहने पर वो हंस पड़ा था। सुल्तान जहीर के छोटे लेकिन नफासत से सजे ड्राइंग रूम में वो सिंगल सोफे पर आरामदेह अंदाज में बैठा उनसे उस तरह गुफ्तगू कर रहा था जैसे उनसे बरसों की आशनाई हो। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेहरमा तुम्हारे पास जॉब करती है। वैसे तुम दोनों की तो यूनिवर्सिटी लाइफ में कभी बनी ही नहीं थी एक दूसरे की। जब हालात बदलते हैं ना बाबा, तो नापसंद लोगों को भी बर्दाश्त करना इंसान सीख ही जाता है। वो गहरी संजीदगी से बोली। वैसे अंकल, आपकी बेटी पढ़ाई से ज्यादा अपने कपड़ों पर तवज्जो दिया करती थी, लेकिन अब देखें तो इतने फलसफे बोलती है कि अपनी किताबें लॉन्च कर दे मार्केट में। उसकी निस्बत सालार का अंदाज शोक सा था। मेरी बेटी बहुत बदल गई है। मैंने आसाइशों का आदी बनाकर इसे जॉब के लिए धक्के खाने पर मजबूर कर दिया। चाहे किसी इंसान के पास कितना ही मालो दौलत क्यों ना हो, इससे अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार में इतना नहीं बिगाड़ना चाहिए कि जब वक्त बदले और हाथ में कुछ ना रहे तो उसके बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने के बजाय उस वक्त को याद करके शिकवे करें कि हम इतने खुशहाल थे, अब हमारे पास कुछ क्यों नहीं रहा। बाबा, आप किन बातों में लग गए हैं? मेहरमा ने उन्हें टोकते हुए साथ ही सालार को कहा। चले, आपको देर हो रही होगी। तुम्हारी माँ खाना तैयार कर रही है बेटा। वो उसे इतनी जल्दी भेजने पर रजामंद नहीं थे। बाबा, इन्हें मीटिंग में शिरकत करनी है, ये फिर कभी खा लेंगे। मेहरमा उसे जल्द से जल्द वहां से चलता करना चाहती थी। मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है। उसके इतला देने पर मेहरमा उसे घूर कर रह गई। चलो, ये भी अच्छा ही हुआ। जाओ, तुम भी अपनी माँ के साथ हाथ बटाओ किचन में। सुल्तान साहब ने उसे वहां से भेज ही दिया था। वो अचानक गहरी नींद से जागते हुए झटके से उठ बैठा। भारी होते सर को दोनों हाथों में थामते हुए वो बेड से उतर गया। एक अजीब सी बेचैनी ने उसके वजूद को जकड़ रखा था। कमरे की घुटन को कम करने के लिए उसने दबीस पर्दों को एक जानिब खिसकाकर सारी खिड़कियां खोल दी थीं, जहां से नजर आता बाहर का मंजर देखकर वो चौंका। काफी सारे मजदूर बैठक के जानिब काम में मसरूफ दिखाई दे रहे थे। उसे लगा शायद सादत गाजी बैठक में रेनोवेशन करवा रहे हैं। इतने टेंस माहौल में नाना जान को आखिर बैठक की तज़यीन आराइश का ख्याल कैसे आ सकता है? वो बुड़बुड़ाते हुए शावर लेने के बाद फ्रेश सा होकर रूम से बाहर निकल आया। जीन्स पर वाइट शर्ट पहने मुलाजिम को चाय लाने का कहकर वो बाहर लॉन में ही आ गया था, जहां फाज उसे एक कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया। उसके हाथ में एक ड्रिल मशीन थी। उसके सामने मेज पर कुछ औजार भी पड़े थे। क्या हो रहा है यहाँ पे? उसके इस्तफसार पर फाज ने सर उठाकर उसे देखा। जो तोड़फोड़ तुमने मचाई थी उसी को ठीक किया जा रहा है। मैंने कौन सी तोड़फोड़ मचा दी? मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। मैं सोने से पहले की बात कर रहा हूँ। कुछ याद है किस वक्त सोए थे तुम? पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या हुआ था। सिर्फ इतना याद है कि हम सब एक साथ बैठे हुए थे बैठक में और अनस भाई के मुतालिक बात हो रही थी। पेशानी को 2 उंगलियों से मसलते हुए उसने कहा। उसके बाद वजाहत ताया ने कहा कि रेशाम को खोला दिलवाकर सालार भाई से उसकी शादी करेंगे और साथ में बरीज़े और तुम्हारी भी। बरीज़े और मेरी? क्या बकवास कर रहे हो? वो अपनी जगह उछल ही तो पड़ा था। ये बकवास तुमने खुद की थी अपने मुंह से कि तुम्हें बरीज़े से शादी करनी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं क्यों कहूँगा ऐसे? फर्ज का पुरसुकून अंदाज उसके गुस्से के गिराफ को बढ़ा रहा था। मुझे मालूम है तुम मर के भी नहीं कहोगे ये बात, लेकिन क्या? लेकिन तुम्हारी जुबानी फातिम ने अपना रिश्ता पेश किया था। उसने आशिर को देखते हुए कहा तो वो सुन रह गया। तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो मेरे अंदर दाखिल होकर ये बात करके गया था? जी बिल्कुल, वो तुम्हारे अंदर सिरायत कर गया था कल रात, लेकिन अबीर भाई और मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं था। सबको यही लगा कि तुम खुद कह रहे हो, इसीलिए फिर क्या हुआ? जल्दी बताओ, नहीं तो ये ड्रिल मशीन तुम्हारे सर में दे मारूंगा। अरे सब्र तो करो, बता रहा हूँ। वैसे भी ये मशीन बेचारे मजदूरों की है, इसमें कुछ खराबी हो गई, वही ठीक कर रहा हूँ। और फिर ये हुआ कि बाबा ने मना कर दिया कि वो अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे जैसे नालायक और निकम्मे इंसान के हाथ में नहीं देंगे। उन्होंने मेरे लिए ये अल्फाज कहे? आशिर ने बेयकीनी से बोला। उसे यकीन नहीं था कि उसके इतने अच्छे मामू उसके लिए ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने ज़रा मुहज्जिब लफ्ज़ों में कहा था, लेकिन उन लफ्ज़ों का मतलब यही था, निकम्मा, नालायक। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद फातिम साहब को जो गुस्सा आया है, ऐसी उठा पटक की है कि बापा को तो बीबी ही शूट कर गया कि उनकी बेटी पर एक जिन का साया है। अबीर भाई की अलग क्लास लगी है कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने किसी को कुछ खबर नहीं होने दी। रेशाम का मसला भूलकर उन सबको बरीज़े की फिक्र लग गई है। वजाहत ताया और जमीर चाचू के साथ इमाम साहब की तरफ गए हुए हैं कि किसी तरह उस जिन से जान छुड़ा सके। और वो फसाद की जड़ कहाँ है जिसके जैसे सारा खड़ाक फैला है? आशिर ने तन से पूछा।
बरीजे की बात कर रहे हो? तो और किसकी करूंगा? उसी की वजह से तो सारा सुकून बर्बाद होकर रह गया है। जरा तमीज से जिक्र करो मेरी बहन के बारे में, और अगर ना करूं तो, वरना फिर सबके कान भर के तुम्हारी शादी करवा दूंगा उसी के साथ। दूसरे लफ्जों में तुम ये कहना चाहते हो कि मैं खुदकुशी पर मजबूर हो जाऊं? खुदकुशी हराम है यार, मर के सीधा जहन्नुम में चले जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा ऐसा तो तुम्हारे मरने का। बरीजे के साथ सारी जिंदगी गुजारना किसी जहन्नुम से कम नहीं। वो तलखी से बोला जब ये मुलाजिम उसकी चाय ले आया। आशिर साहब आपकी चाय। नहीं पीना मुझे, वो तड़क के बोला। आशिर साहब का दिमाग खराब हो चुका है, ये मुझे दे दो इधर, फाज ने कहते हुए वो कप ट्रे में से उठा लिया था। वो जब सुल्तान साहब के घर में दाखिल हुआ तो वो उसे लॉन में ही मिल गई। सुना है तुम्हारा बॉस आया हुआ है? आया है, और जाने का नाम भी नहीं ले रहा। वो तो तुम्हारा क्लास फेलो भी रह चुका है, फिर इतना बुरा क्यों लगता है वो तुम्हें? एक तो मुझे समझ नहीं आती, सब मुझसे यही बात क्यों पूछते हैं। अब वो नहीं अच्छा लगता मुझे तो बस नहीं लगता, जरूरी नहीं है कि कोई वजह हो। अच्छा भाई नाराज मत हो, ये बताओ है किधर वो? ड्राइंग रूम में है, वो अक्खड़ लहजे में बोली तो वो तेज तेज कदम उठाता वहां दाखिल हो गया जहां वो तन्हा ही सोफे पर टांग रखे बैठा था। सुल्तान साहब शायद किसी काम से बाहर गए हुए थे। कैसे हो सालार गाजी? दोस्ताना अंदाज में कहते हुए वो उसके सामने विराजमान हो गया। वो उसे वहां देखकर चौंका, फिर एक मुस्कुराहट उसके लबों पर उभरी। फिट एंड फाइन। तुम सुनो, दूसरों का हक मार के खुश तो बहुत होगे। दूसरों का हक? क्या तुम मेरी बीवी की बात कर रहे हो? अनस का अंदाज नॉर्मल था, लेकिन फिर भी उसे अंदर तक जला गया था। मैं रेशाम की बात कर रहा हूं, जिससे तुमने जबरदस्ती पेपर साइन करवाए थे। तुमने खुद एतराफ किया था इस बात का। जो जिसके नसीब में लिखा होता है वो उस तक किसी न किसी तरह से पहुंच ही जाता है। तुम्हें यह बात मान लेनी चाहिए कि वो तुम्हारे नसीब में नहीं थी। नसीब में तुम्हारे भी नहीं थी। तुमने जिस तरह उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया है उससे सभी वाकिफ हैं। बहरहाल मैं चाहता हूं तुम उसे छोड़ दो, डिवोर्स दे दो। अनस ने उसकी बात सुनकर लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर सुकून से कहते हुए इस्तफसार किया। ठीक है, छोड़ दूंगा। बदले में मुझे क्या दोगे तुम? सालार को अंदाजा नहीं था वो इतनी आसानी से आमादा हो जाएगा। जो भी तुम चाहो। उसकी खुली पेशकश पर एक मुस्कुराहट अनस के लबों पर उभर कर मादूम हुई। अगर तुम्हें रेशाम से ही मतलब है तो मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन फिर उसने बात अधूरी छोड़ दी, जबकि वो उसकी शर्त जानने को मुतजस्सिस था। रेशाम की तमाम प्रॉपर्टी मेरे नाम होनी चाहिए। अनस को मालूम था उसे किस तरह से घेरना है। उसने भी ऐसे तुरप का पत्ता फेंका था कि चंद सातों के लिए उसे चुप ही लगा दी थी। अरे अनस, तुम कब आए? उनके सिलसिला कलाम को सुल्तान साहब की आमद ने रोका था। कुछ देर पहले ही आया हूं अंकल। आपकी तबीयत कैसी है? वो उठकर खुशमिजाजी से उनसे मिलने लगा। तबीयत तो बस ठीक ही है। इनसे मिलो, ये मेहरमा के बॉस हैं। साथ ही सालार की जानिब इशारा करके उन्होंने तारुफ करवाया। मैं मिल चुका हूं इनसे, और ये मेरे हमसाए में रहता है। इसके बाप से काफ़ी अच्छी दोस्ती है मेरी। इस इलाके का डीएसपी है वो। रजा गाजी का जिक्र करते हुए वो फखर से कह रहे थे। मिलकर अच्छा लगा अनस गाजी। उसके चेहरे पर भी तल्ख से मुस्कुराहट थी। तुम्हारी वजह से इतनी डांट पड़ी है मुझे, क्या जरूरत थी सबके सामने वो तमाशा करने की? वो सख्त गुस्से का शिकार होकर कब से उस पर बरस रही थी, जो जरा सा भी बुरा मनाए बगैर मुस्कुराते हुए से सुन रहा था। फातिम, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? तुम्हारी ही तो सुन रहा हूं इतनी देर से। क्यों किया तुमने ऐसा? मालूम है सब कितने खौफजदा हो चुके हैं, और मुझे तो ऐसी नजरों से देखने लगे हैं जैसे मैं खुद एक चलती फिरती जिन्जादी हूं। तुमने मुझे मशकूक कर दिया है सबकी नजरों में। वो सब तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारी शादी से मुझसे ही होगी। क्या जरूरत थी भला ये बात कहने की, वो भी आशिर के जरिए? वो जिस अंदाज में तुमसे बात करता है, तुमसे बदतमीजी करता है, मुझे वो पसंद नहीं। बस इसी वजह से उससे बदला लेने के लिए किया। तुम्हारा तरीका बहुत गलत था। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें सबसे छुपा कर रखने की, और तुमने मंजर आम पर आकर सब बिगाड़ दिया। अब छुपने की जरूरत ही नहीं है, अब सामने आना ही पड़ेगा। और वो किसके लिए? रेशाम के साथ साथ तुम्हारी शादी का फैसला भी होने लगा है। मेरी शादी? वो बुरी तरह चौंकी। मैंने क्या गलती की है? मेरी शादी क्यों करवा रहे हैं? तुम्हें शादी नहीं करनी मुझसे, तुमसे। ना तुम एक इंसान बन सकते हो और ना मैं एक जिन बन सकती हूँ। फिर कैसे होगी हमारी शादी? उससे बेजारी से पूछा। किसी और से शादी कर लो कि तुमसे नहीं हो सकती तो किसी और से भी नहीं करूंगी। सारी जिंदगी मेरे नाम पर गुजार दोगी? हाँ, गुजार दूंगी। और अगर फिर भी किसी इंसान से शादी करनी पड़ गई तो? नहीं करूंगी। वो उसकी आंखों में जलते शोलों को देखती हुई मजबूत लहजे में बोली। देखता हूं कब तक कायम रहती हो अपनी बात पर। चैलेंज कर रहे हो? समझ सकती हो।
उससे शाह ने उचका कर कहा। जब भी बाहर शोर गोल पर उसे नापसंदीदगी से बरीजे को देखा। ये तुम्हारे घर वाले सुकून से क्यों नहीं रहते? तुम्हारे और यूसुफ के नाम की धूम मचने से पहले हम सुकून से ही रहते थे। वो हाथ झल्लाकर बोली। दरवाजा जोर जोर से बजा जा रहा था। अब जाओ भी, उसे वहीं जमे देखकर बरीजे ने उसे कहा। अब तो सब जान ही चुके हैं, तो फिर क्यों जाऊं मैं? किसी ने अभी तक तुम्हारा ये असल रूप नहीं देखा। तुम मेरे लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दोगे। खोल दो दरवाजा, मैं नहीं दिखाई दूंगा किसी को। उसके सुकून से कहने पर वो उसे तेज नजरों से देखती हुई दरवाजा खोलने को आगे बढ़ गई। क्या दरवाजा तोड़ने का इरादा है तुम्हारा? मरीजे ने उसकी सूरत देखते ही तेज लहजे में पूछा, लेकिन वो उसकी बात का जवाब दिए बिना आग भरी नजरों से उसे घूर रहा था। न मुझे तुमसे कोई मतलब है और ना ही तुम्हारे उस आशिक जिन से। मेरी बला से तुम दोनों भाड़ में जाओ। मुझे सिर्फ इतना कहना था कि उससे कहो मुझसे दूर रहे। क्यों? तुम कोई हसीन दोशीजा हो जो डर रहे हो कि वो तुम पर भी आशिक हो जाएगा? मरीजे ने तन से कहने पर जहां फातिम हंस पड़ा था बेसाख्ता, वहीं आशिर का बस न चला था कि उसे 2 थप्पड़ ही लगा दे। जुबान संभाल कर बात करो। अगर मैं कुछ कहता नहीं हूं तो उसका यह मतलब नहीं है कि जो मुंह में आए बोलती रहो। आशिर, मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारी ये फजूल बातें सुनने का। वो बेजारी से बोली। अब तो सबको खबर हो चुकी है। कब तक छुपा कर रखोगे उसे 7 पर्दों में? कनखियों से खाली पड़े कमरे में नजरें दौड़ाते वो तंजे मुस्कुराहट से कह रहा था। ना जाने क्यों से लग रहा था कि वो वहीं मौजूद था। 7 पर्दों में छुपा लूं या 1000 पर्दों में छुपाऊं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अगर वो मेरा सहारा लेगा तो फिर मुझे भी मतलब रखना पड़ेगा ना ब्रीजे डियर। खत्म हो गई तुम्हारी बकवास, ये और भी कुछ कहना है? यहीं पर है ना वो? हाँ यहीं पर है। बुलाऊं उसे? बात करना चाहोगे उसके साथ? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे जो एक जिनजादे के साथ गपशप लगाऊं। वो तनफ्फुर से बोला। अरे डर क्यों रहे हो? वो तो इतना प्यारा सा है, कर लो ना उससे बातें, अच्छा लगेगा तुम्हें। बज़ाहिर मुस्कुराते हुए लेकिन वो तन से कह रही थी। तुम्हारे माँ बाप को बताऊं जाकर कि एक जिन से बातें कर रही है रूम लॉक करके? आशिर ने उसे घूर के कहा। जाओ कह दो जाकर, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन बाद में वो जिन आकर तुम्हारी क्लास लेगा तो फिर खौफ से खुद ही कहीं छुप कर बैठ जाओगे। एक्सक्यूज मी, आशिर मिर्जा डरता नहीं है किसी से। उसने हाथ झुला कर कहा। अच्छा, फिर उस दिन तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ गई थी जब वो फास की शक्ल में तुम्हारे सामने आया था? किस दिन की बात कर रहे हो? मुझे तो याद नहीं। याद तो उसे सब था, लेकिन उसके सामने भला क्यों इकरार करता कि वो वाकई खौफजदा हुआ था? और ये बात उसे कैसे पता चली? यकीनन इस फातिम के बच्चे ने ही उसे बताया होगा। आशिर को वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी दिल ही दिल में कितनी सलावातें उसे सुना किया था। उसके जाते ही वो दोनों बेख्तियार हंसे थे। आपको इतना बड़ा सच हमसे छुपाना नहीं चाहिए था बाबा। आपको हमें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। क्या हमारी माँ को मालूम था आपकी दूसरी शादी के बारे में? वजाहत भाई, बाबा ने जो कुछ भी किया हो, आपको कम से कम कोई हक नहीं है उनसे जवाब तलबी का। रायमा को सख्त नागवार लगा था वजाहत गाजी का ये अंदाज। मैं बेटा हूं इनका, मुझे ये जानने का पूरा हक है कि हमें अंधेरे में रखकर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया गया। आखिर मैंने कोई धोखा नहीं किया, सिर्फ सच को छुपाया था, और वो सच आपकी इज्जत को मट्टी में मिला गया। उसने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। वो तलखी से बोली। वो भी मेरा खून है, सादत गाजी ने मजबूत लहजे में कहा। अगर आप अपने उस बेटे और उसके बीवी बच्चों को इस हवेली में लाने का सोच रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूं। मेरे जीते जी वो इस हवेली में कदम नहीं रखेंगे। रेशाम को मोहरा बनाकर ये खेल रचाने के बजाय उन्हें हमारे सामने आकर 2 ब 2 बात करनी चाहिए थी। मेरे बेटे की शादी खराब की, रेशाम से ज़बरदस्ती निकाह किया, हमारी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी, और आप कहते हैं कि उन्हें इस हवेली में आने दो। नामुमकिन। जो रिश्ता मेरा तुम सबसे है वही उससे भी है। इस हवेली पर जितना तुम लोगों का हक है उतना ही उसका भी है। आप मेरे मुकाबले में उसे लाकर खड़ा कर रहे हैं जिसे अभी तक आपने देखा भी नहीं है। वजाहत गाजी गहरे शौक के आलम में थे। देखने के लिए ही तो बुला रहा हूँ, आंखें तरस गई हैं मेरी उसके लिए। उनके लहजे में पिदराना शफकत थी। बरसों से जिसकी तलाश, जिसका इंतजार उन्हें सुकून नहीं लेने देता था, वो अब खत्म होने वाला था। वो अपने उस बेटे से मिलने के लिए तड़प रहे थे जिसे उन्होंने एक बार भी नहीं देखा था। सीने पर बाजू बांधे, सर पर दुपट्टा लिए वो मुंह फुलाकर वहां बैठी थी। रायमा पुप्पो मुख्तलिफ सूरतें पढ़ पढ़कर उस पर फूंक रही थी, जबकि हमना गाजी जाने कभी मिर्चों से उसकी नजर उतारती तो कभी अंडों से। कोई उसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। हर वक्त कोई ना कोई साथ लाजमी होता था। ये अंडे इसके सर में मार दे मामी, वो खुद ही चला जाएगा। आशिर कोई मौका नहीं छोड़ रहा था उसे तपाने का। जब मैं कह रही हूं कि मुझ पर किसी जिन का कोई साया नहीं है तो फिर आप लोगों को यकीन क्यों नहीं कर रहे मेरी बात का?
یہ صحیح کہہ رہی ہے مامی، نظر تو آپ کو اس جن کی اتارنی چاہیے جو اس چڑیل کی ہتھے چڑھ گیا ہے، بیچارہ۔ اس کو خاموش کروا لیں پھپھو۔ چپ کر جاؤ عاشر، نہیں تنگ کرو اسے، تنگ تو اس نے کر رکھا ہے ہم سب کو۔ تم چپ کرو گے یا نہیں؟ بریزے نے تب کر کہا۔ نہیں کروں گا میں چپ۔ کیا کرو گے تم؟ ایسا کرو یہ میز اٹھا کر دور پھینک دو اور یہ صوفے ہوا میں اڑا دو۔ یہ سب بھی تو دیکھے نا فاطم صاحب کی کرامات۔ اس کی فضول گوئی پر وہ جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ کر دیا نا اسے ناراض، خاموش تو بیٹھا جاتا ہی نہیں ہے تم سے، لائمہ نے ناراضگی سے اسے کہا۔ آپ جانتے ہیں بابا، مجھے دولت اور جائیداد کی کوئی حوث نہیں ہے۔ آپ نے جتنا میرے اور ماشا کے لیے کیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بابا اور بھائیوں سے مل لیں۔ میں نے ساری زندگی آپ کو خوش ہوتے ہوئے بھی ایک خالی پن محسوس کیا ہے آپ کے اندر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کے بابا کون ہیں۔ آپ نے ہمیشہ انہیں دور سے ہی دیکھا ہے، کبھی ان کے قریب نہیں گئے، کبھی ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب میں آپ کو مزید اذیت میں جلنے نہیں دوں گا۔ وہ مجھے قبول نہیں کریں گے بیٹا، میرے سوتیلے بھائی کبھی نہیں چاہیں گے کہ میں وہاں جاؤں۔ ان کے لہجے میں زمانے کی تھکن تھی۔ دل تو ان کا بھی چاہتا تھا سعادت غازی کے پاس جانے کا، ان سے ملنے کا، اپنے بھائیوں سے ملنے کا، لیکن ایک خوف نے ان کے اندر پنجے گاڑ رکھے تھے کہ اگر انہیں دھتکار دیا گیا تو کیا ہوگا۔ آپ کو ان کی نہیں اپنے بابا کی فکر کرنی چاہیے، جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہے۔ آپ ان کے سگے بیٹے ہیں۔ وہ ہر صورت انہیں قائل کرنا چاہتا تھا وہاں جانے کے لیے۔ انس ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل، انہوں نے آپ کو خود بلایا ہے ملنے کے لیے، آپ کو وہاں جانا چاہیے ایک بار۔ فرمان دوناری بھی انس کے حق میں تھے، وہ بھی انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فی الحال ماشا اور صوفیہ آنٹی کو نہ لے کر جائیں، صرف آپ اور انس چلے جائیں۔ بھروسہ رکھیں بابا، مایوسی نہیں ہوگی آپ کو، انس نے دلاسا دینے والے انداز میں کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لگتا تھا جیسے تمام آفتیں ایک ساتھ ہی سعدین حویلی پر آن پڑی تھیں۔ وہاج غازی اور ضمیر غازی جب واپس لوٹے تو ان کے چہروں پر گہری سنجیدگی اور پریشانی کی لکیریں تھیں۔ امام صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ حویلی پر واقعی میں کسی جناتی قوت کا سایہ تھا۔ بے شک وہ تنگ کرنے والا برا جن نہیں تھا، لیکن تھا تو ایک جن زیادہ ہی۔ کچھ احتیاطی تدابیروں کے علاوہ انہوں نے جلد از جلد بریزے کی شادی کر دینے کی بھی تاکید کی تھی۔ ایسے میں زیادہ چانسز تھے کہ وہ جن خود ہی دور ہو جاتا۔ اب وہ شیطانی صرف جن تو تھا نہیں جو اللہ کا ذکر وہاں ہونے سے بھاگ جاتا، لیکن پھر بھی امام صاحب نے روزانہ صبح شام بلند آواز سے تلاوت قرآن پاک اور ساتھ ساتھ تحدیدی نامہ مبارک انہیں دیا پوری حویلی میں لگانے کے لیے، جو کسی بھی طرح کے جن سے حفاظت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب سعادت غازی کے سامنے ساری بات رکھی گئی تو انہوں نے جمعے کو ہی بریزے اور عاشر کا نکاح کرنے کا حکم دے دیا، جس کے آنے میں 4 دن تھے۔ اس بار وہاج غازی بھی کچھ نہیں بولے تھے، ڈھلکے شانوں اور جھکی گردن کے ساتھ انہوں نے وہ فیصلہ قبول کر لیا تھا۔ اپنی بیٹی کی شادی وہ کسی بہت سے اچھے سے لڑکے سے کرنا چاہتے تھے، لیکن جس قسم کا مسئلہ اسے درپیش تھا، ایسے میں انہیں یہی ٹھیک لگا کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے۔ اگر حویلی سے یہ بات باہر چلی جاتی، جو تھوڑی بہت عزت بھی حویلی والوں کی رہ گئی تھی، وہ بھی خاک میں مل جاتی۔ سعادت غازی کے فیصلے پر سبھی خوش تھے سوائے ایک شخص کے، جس نے تنے تاثرات اور بھنچے ہوئے ابرو کے ساتھ فوراً انکار کر دیا تھا، معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے نانا جان۔ اس کی بات وہاں موجود ہر شخص کو ہلا گئی تھی۔ آج تک کسی نے ہمت نہیں کی تھی ان کے فیصلے کے خلاف جانے کی۔ ابیر اور سالار تک نے ان کے حکم کی ہمیشہ تعمیل کی تھی، لیکن وہ عاشر مرزا تھا، وہ ان کے جیسا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ کوئی وجہ نہیں ہے، مجھے بس اسے شادی نہیں کرنی۔ اور پھر وہاج ماموں پہلے ہی انکار کر چکے ہیں کہ وہ ایک غیر سنجیدہ لاؤبالی شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔ اس کا سنجیدہ انداز بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بات تم نے نہیں کی تھی، لیکن انکار آپ نے میرے لیے کیا تھا۔ کیا تم اسی وجہ سے ضد میں آ کر منع کر رہے ہو؟ وہاج غازی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، مجھے ویسے بھی اس سے شادی نہیں کرنی تھی، میرا اور اس کا مزاج مختلف ہے۔ کیا تم ہمارے فیصلے کے خلاف جاؤ گے؟ کیا اتنے بڑے ہو گئے ہو تم؟ سعادت غازی نے سخت ناگواری سے دریافت کیا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر نانا جان، لیکن یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، میری پوری زندگی کا سوال ہے جسے میں کسی اور کے لیے قربان نہیں کروں گا۔ وہ سرد لہجے میں کہتے ہوئے جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ عاشر، وہ ان کی آواز دینے پر بھی نہیں رکا تھا۔ آپ اس پر دباؤ نہ ڈالیں بابا، اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو رہنے دیں، وہاج غازی نے شکست خوردی سے کہا۔ لیکن بریزے، انہیں اس کی فکر تھی۔ میرا ایک دوست ہے زمان، آپ جانتے ہوں گے اسے، اس نے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا ہے بریزے کے لیے، ڈاکٹر ہے اس کا بیٹا، مجھے تو ہر لحاظ سے یہ رشتہ معقول لگتا ہے۔
वहाज गाजी सादत गाजी को धीमे लहजे में उसकी तफसील बता रहे थे। हर सू तारीकी कालम था। उसे याद भी नहीं था कि वो कितने घंटे बाहर बेमकसद गाड़ी दौड़ाता रहा। उसका वजूद एक अनदेखे अलाव में जल रहा था। जब इश्तियाल कुछ कम हुआ तो तब उसने हवेली का रुख किया। वो अपने रूम में दाखिल हुआ, लेकिन वहां मौजूद सादत गाजी को देखकर बुरी तरह चौंका। नाना जान, आप यहाँ? ये क्या वक्त है घर आने का? उनका अंदाज सर्जिश करने वाला नहीं था, लेकिन संजीदा था। मुझे इस बात से क्यों लाइन रखा गया? वो जब बोला तो उसकी आवाज भारी थी, जिसमें गहरा कर्ब झलक रहा था। क्या करते अगर तुम्हें यह बात मालूम होती तो? अगर मुझे मालूम होता तो कब का ये हवेली छोड़कर जा चुका होता। मुझे मालूम है बरीजे और तुम्हारा मिजाज मुख्तलिफ है, लेकिन हम नहीं चाहते थे बरीजे या रेशाम की शादी हवेली से बाहर हो, वो भी उस सूरत में जब रिश्ते घर में ही मौजूद हो। आपने फैसला करने से पहले ये नहीं सोचा कि वो और मैं क्या चाहते हैं? उसका लहजा पोरता पेश था। नहीं, मुझे एतमाद था कि मेरे बच्चे मुझ पर भरोसा करते हैं, वो मेरे किए गए फैसले पर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन मैं गलत था। सादत गाजी का शिकस्त खोरदा अंदाज देखकर उससे अपनी खुद पसंदी पर गुस्सा आने लगा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं बरीजे से शादी नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे वजह बताना पसंद करोगे? कोई वजह नहीं है। वो सच कह रहा था। बरीजे से शादी न करने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं थी। फिर मुझे नहीं लगता कि हम दोनों साथ जिंदगी गुजार सकेंगे। जिंदगी समझौतों के बगैर नहीं गुजरती आशिर। तुम उससे अपने रूप में ढाल लेते या उसके रूप में ढल जाते। लेकिन खैर, वहाज ने अपने दोस्त के बेटे के प्रपोजल के बारे में बताया था। वो आएंगे कल। अगर मुझे मुनासिब लगे तो बहुत जल्द बरीजे का निकाह कर दिया जाएगा। उनकी बात पर वो चौंक कर उन्हें देखने लगा। सो जाओ तुम। उसका शाना थपक कर वो रूम से चले गए तो उसने सकून का सांस भरा कि बिल आखिर उस लड़की से जान छूटने वाली थी। रस्मी सी मुलाकात के बाद डॉक्टर आसिम की फैमिली को हाँ कह दी गई थी। कुछ दिनों बाद आसिम को लंदन जाना था किसी कोर्स के सिलसिले में, इसलिए उनकी तरफ से भी निकाह की फरमाइश की गई। तो वहाज गाजी ने सुख का सांस लिया कि उनके कहे बिना ही सब उनकी मंशा के मुताबिक हो रहा था। तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? रायमा ने हाथ में उसका चेहरा थामते हुए पूछा तो उसने शिकवा के ना निगाहों से उन्हें देखा। मुझे भी शादी नहीं करनी फुप्पो। शादी नहीं कर रही बरीजे, सिर्फ निकाह हो रहा है। मुझे निकाह भी नहीं करना। इतनी उजरत में निकाह के हक में तो कोई भी नहीं था, लेकिन मजबूरी में ऐसा करना पड़ा है। ऐसा कभी नहीं होगा। रेशाम की वजह से सब पहले ही काफी टेंशन में शिकार है। कम से कम तुम तो अकल से काम लो। रायमा गाजी का सर दुखने लगा था। इस हवेली के बच्चों के मसले खत्म ही नहीं होते थे। कभी रेशाम तो कभी आशिर और अब बरीजे। अगर मैं हाँ कर भी दूं तो वो ऐसा नहीं होने देगा। तुम उसकी बातों में आकर उसे खुद पर हावी मत होने दो। एक जिन और इंसान का मिलन नामुमकिन है। वो नहीं समझता ये बात, लेकिन वो तो बहुत नेक और शरीफ है। फिर भी मुझे नहीं मालूम फुप्पो, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा उसके अलावा किसी और से शादी करने के लिए। आंसू उसकी आंखों से टिप टिप गिर रहे थे। तुम भी बिल्कुल पागल हो गई हो। अपने जैसा ही बना लिया है उसने तुम्हें। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक जिनजादे से मोहब्बत कर बैठूंगी। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो कोई तुम्हें नसीब ही नहीं होगी। ऐसे क्यों कह रही हैं पुप्पो? उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मसल डाला हो। अकल से काम लो बरीजे, तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं। तुमने उसे शेयर दी होगी जब भी वो इतना आगे बढ़ा। मैं उसे मना नहीं कर सकती, ना ही उसे रोक सकती हूँ यहाँ आने से। तुम उसे मना करके देखो, कह दो कि तुम्हें उससे कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही तुम उससे मोहब्बत करती हो। वो समझ जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सच क्या है फिर? सच यही है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकती। रायमा ने तासुब से उसे देखा। वो उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। उन्होंने हमेशा उसे आसिर के हवाले से ही सोचा था, जिसकी वजह से वो उन्हें और भी ज्यादा अजीज थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उनका बेटा ही दगा कर जाएगा। उन्होंने उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही जवाब था कि बरीजे का और उसका मिजाज मुख्तलिफ है और वो लड़की उसे पसंद भी नहीं, इसलिए वो उसे शादी नहीं करेगा। ये आप कौन कौन सी कहानियां सुना रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माशा चकर चकर अनस और रजा गाजी की शक्ल देखते हुए उन बातों को समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सोफिया को तो इन बातों का पहले से इल्म था, लेकिन माशा के इल्म में नहीं थी। सच यही है, अनस ने हल्के से उसके सर पर थप्पड़ लगाते हुए कहा तो उसने नाराजगी से अपने बड़े भाई को देखा। मुझे तो यकीन नहीं, पहले तो हमारे कोई ददियाल रिश्तेदार नहीं थे और ये एकदम से रातों रात इतने सारे निकल आए। मैंने कहा था ना बाबा, इसे ना बताएं अभी। क्या मतलब? और कितना अर्सा आप लोग छुपा कर रखने वाले थे मुझसे ये राज? वो सख्त शाकी थी। मैं तो कभी नहीं बताना चाहता था, लेकिन बाबा ने कहा कि बता दो बेचारी को। इससे भी तो मालूम होना चाहिए ना कि इसके दादा, ताया, चाचा और फुप्पो भी मौजूद हैं।
अच्छा, तो पहले कहाँ थे ये सब? उसने तन से पूछा। जहाँ भी हैं पहले भी वहीं थे, बस तुम्हें नहीं मालूम था। मुझसे क्यों छुपाया? तो हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें मालूम हो। अनस का अंदाज मुसलसल उसके गुस्से का ग्राफ बढ़ा रहा था। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं। लेकिन क्यों? अभी नहीं, बाद में लेकर जाएंगे तुम्हें। भाई, मुझे मिलना है अपने रिश्तेदारों से। क्या उनके बच्चे हैं? तुम्हारी उम्र का तो कोई भी नहीं है। अनस के दो बदो कहने पर वो खफगी से उसे देख कर रह गई। आज सुबह से सादक गाजी का दिल एक अलग ही खुशी का शिकार था। आज अनस और रजा गाजी ने आना था। उनका बस न चलता था कि अपने बेटे और पोते की आने की खुशी में क्या क्या नए इंतजाम कर डालें। तैयारियां तो ऐसे की जा रही हैं जैसे वजीर आजम की सवारी आने वाली है। वजाहत गाजी तनफुर से मुलाजमों को उजरत में भागते दौड़ते देख रहे थे, जो हवेली की तज़यीन और आइस में मसरूफ़ अमल थे। सादत गाजी ने किसी किस्म की कोई कसर न छोड़ रखी थी। हर चीज़ का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता था। न जाने कितने ही किस्म के पकवानों की तैयारी की जा रही थी किचन में। वाइट और रेड कलर के दीदा ज़ेब लिबास में मलबूस और गंजा के दुपट्टे को सलीके से ओढ़े वो खुद भी मुलाजमों को हिदायत दे रही थी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? उन्होंने रेशाम को देखकर करख्तगी से पूछा। वो सफाई करवा रही थी ताया जान। उसने गड़बड़ा कर जवाब दिया। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, अपने रूम में जाओ। लेकिन मैं रूम में क्यों जाऊं? वो सख्ती से बोली तो उसने नासमझी से पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम रजा और अनस गाजी की मौजूदगी में यहाँ रहो। रेशाम को सख्त नागवार गुजरी थी उनकी ये बात, लेकिन आगे से बिना कुछ कहे वो वहां से हट गई थी। फिर ऑफ मूड के साथ जमीर गाजी के पास गई, जो कुछ कागजात की वर्क गर्दानी कर रहे थे। उन्होंने मुझे रूम में बंद रहने को कहा है और आप उन्हें कुछ भी नहीं कह रहे। तुम्हारे ताया ठीक कह रहे हैं, तुम कमरे में ही रहना। वो मसरूफ से अंदाज में बोले तो वो मजीद खफा हो गई। इस सब में मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों नजरबंद किया जा रहा है? जो तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे साथ वही किया जा रहा है। सादगी से कहते हुए उन्होंने एक लिफाफा उसकी जाने बढ़ाया। ये क्या है बाबा? खुला के कागजात। वो अल्फाज उसके दिल में निस्तर बनकर उतरे थे। लिफाफा उसके हाथ में लर्ज गया था। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं बाबा? उसकी आवाज़ में भी वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। मैं इस रिश्ते के हक में नहीं हूँ। मैं अनस गाजी की इस हरकत पर उसे माफ़ भी नहीं करूँगा कभी। उसने गन पॉइंट पर तुमसे पेपर साइन करवाए थे। रिश्ते ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पर कायम नहीं किए जाते। लेकिन बाबा, मैं नहीं चाहता ये रिश्ता कायम रहे। और दादा जान? उसे मुंह से उम्मीद थी यकीनन सादत गाजी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वो इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। उन्हें मैं मना लूंगा रेशम। तुम्हें ज़बरदस्ती उस शख्स के साथ बंधे नहीं रहने देंगे। तो आंसू खामोशी से उसकी आंखों के किनारों से बहते हुए गाल पर फिसल गए थे। उससे पलकें झुका ली थी। वो कह भी नहीं पाई थी कि वो इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से छुटकारा नहीं चाहती, बल्कि ताउम्र उसमें बंधे रहना चाहती है। रूम में ही रहना अपने। वो उसे दोबारा याद दहानी करवाते हुए बोले तो उसने सर इस बात में हिला दिया। वो घड़ी भी आन पहुंची थी जिसके कई लोग शिद्दत से मुंतजिर थे। एक स्याह चमकती गाड़ी हवेली के पोर्च में आकर रुकी, जिस पर कितने ही लोगों की तवज्जो मरकूज थी। इग्निशन से चाबी निकालते हुए अनस ने रजा गाजी को देखा। बेल आखिर मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है बाबा। आपको वहां ले आया हूं जहां आपको होना चाहिए था। कहने को मैं एक मेच्योर उम्र का आदमी हूं, लेकिन फिर भी मेरा दिल मुंतशिर है। उनके दिल की हालत उनके चेहरे से भी आया थी। वो पहली बार अपने बाप के, अपने बहन भाइयों के रूबरू होने वाले थे। तुम? जमीर गाजी ने इंतहाई हैरत से रजा गाजी को देखा था, जो उनकी इस हैरत पर हल्का से मुस्कुराए थे। वो उनके लिए अजनबी नहीं थे, बल्कि सादत गाजी के तीनों बेटों और वो खुद भी रजा गाजी को आज तक सिर्फ एक DSP की हैसियत से ही जानते थे। उनकी हकीकत तो आज आश्कार हुई थी। मैं गुमान भी नहीं कर सकता था कि वो शख्स तुम होगे। वो अब भी बेयकीनी का शिकार थे। कई बार प्रॉपर्टी वगैरह के मामलात में रजा गाजी काफ़ी मुआविन साबित होते थे। ज़मीर गाजी से काफ़ी अच्छे मरासिम भी थे। यही चीज़ उनकी शौक का बायस थी। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर अंकल। उनकी हैरत को अनस की आवाज़ ने कम किया था। लम्हे में उनके चेहरे पर संजीदगी छा गई। आ जाओ, बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। उसे नज़रअंदाज करके रजा गाजी को कहते हुए वो अपनी मैयत में बैठक में ले आए थे। ग्रे कलर की शलवार कमीज जेब तन किए सोबर सी पर्सनालिटी वाले रजा गाजी अपनी उम्र से कम ही दिखाई देते थे। स्याह बालों के दरमियान झांकते कुछ कुछ सफ़ेद बाल उन्हें मजीद ग्रेसफुल बनाते थे। सादत गाजी ने जब उन्हें दरवाजे से दाखिल होते हुए देखा तो बेसाख्ता झटके थे। बाकी नफूस का भी यही हाल था। ज़मीर गाजी की तरह सभी उनसे आशना थे। अस्सलाम वालेकुम। सब पर एक सरसरी सी नज़र डालते उन्होंने बुलंद आवाज़ से सलाम किया। DSP रजा गाजी, जो गाजी इंडस्ट्रीज़ के कितने ही कानूनी मामलात को मिनटों में सुलझा दिया करते थे, वो सीधा उनके पास ही गए थे। उनके झुर्रियों ज़दा चेहरे और बूढ़े वजूद को देखते हुए पुरनम सा मुस्कुरा रहे थे। तुमने बताया क्यों नहीं कभी?
सादत गाजी की नम आंखों में शिकवा था। मैं खौफजदा था, कहीं आप मुझे धुतकार न दे। वो भारी आवाज में बोले तो सादत गाजी को बेसाख्ता वो छोटा सा बच्चा याद आ गया जिसे हलीमा ने सीने से लगा रखा था, जो रोती हुई बरसती बारिश में उनसे रहम की भीख मांग रही थी, जिसे उन्होंने धुतकार दिया था और फिर बाद अज़ां सारी जिंदगी उसे तलाश करने में गुजार दी थी। हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी उसे ढूंढने में नाकाम ही रहे थे। किस्मत को शायद उनका ऐसे मिलना मकसूद था। फिर उन्हें नहीं मालूम पड़ा वो कितनी ही देर उन्हें सीने से लगा कर रोए थे। आज उनकी तलाश, उनका इंतजार इख्तिताम पजीर हुआ था। आज उन्हें अपना बेटा वापस मिल गया था जिसके मिलने की उम्मीद ही वो खो बैठे थे। लेकिन सादत गाजी के अलावा और किसी को इतनी खुशी नहीं थी उनके वहां आने की। मोहब्बत हासिल होना जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद गुजार देता, लेकिन मैं तुम नहीं हूं। उसकी आवाज में जताता सा तासुर था। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी जगह पर खुद को रखो। दारियान ने जो कर्ब खुद की जात पर झेला था, वो कभी नहीं चाहता था कि उस तकलीफ से वो भी गुजरे। उसकी शादी हो रही है। चंद सातें गुजरने के बाद उसकी आवाज उभरी तो दारियान ने चौंक कर उसे देखा। उसे करने दो फातिम, उसकी जिंदगी में मुश्किल मत डालो। उसके लहजे में इल्तिजा थी। मैं अपनी जिंदगी का क्या करूं जो खौफ एक तूफान की जद में है। तुमने अपनी जान को खुद मुश्किल में डाला है। तुम्हें अपनी हदों को तोड़ना नहीं चाहिए था। वो लम्हा मुझ पर भारी था। जब उसे देखा तो फिर कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। अपने मकसद से हटके, अपने काम से बेपरवाह होकर मैं उसके पीछे चल पड़ा। वो मुस्कुरा दिया। वो उसी की कहानी दोहरा रहा था शायद। तुम्हें मालूम है फातिम, हर इंसान की जिंदगी में ये लम्हा आता है। मोहब्बत का नहीं, आजमाइश का। वो आजमाइश जो अल्लाह की तरफ से होती है। तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़की यूं ही तुम्हारी राह में आ गई थी? नहीं मेरे दोस्त, ये तो तुम्हारा इम्तिहान था। तुमने अपनी जिंदगी के इतने साल सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करने और अपने मकसद में सर्फ किए। अल्लाह देखना चाहते थे कि अगर तुम्हें मौका दिया जाए अल्लाह को छोड़ देने का तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? अल्लाह तो इस तरह से अपने बंदों को आजमाता है, खबर भी नहीं हो पाती। जब तक हम पर कोई मुसीबत ना आए, जब तक हमारे पास कोई गुनाह का जरिया ना हो, तब तक तो हम बहुत अल्लाह की इबादत करते हैं, बहुत उसकी मोहब्बत का दम भरते हैं। लेकिन अल्लाह जहां हमें आजमाने के लिए हमें जरा सी ढील देता है कि मैं देखूं कि मेरा ये प्यारा बंदा भटकने वालों में से तो नहीं है। अगर उसे मौका दिया गया तो क्या ये गुनाह कर लेगा या फिर सख्ती से अपना मुंह मोड़ लेगा कि नहीं, मुझे तो अल्लाह ने हिदायत दी है, मैं कैसे फिर गुनाह की तरफ पलट सकता हूँ? तुम कहते हो ये लम्हा बहुत भारी था। दरअसल यही लम्हा तो तुम्हारा इम्तिहान था। यकीन नहीं हो रहा, मैं एक जिन होकर एक इंसान का लेक्चर सुन रहा हूँ। वो इस्तेहज़ाइया बोला। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ जिनजादे। अल्लाह ने तुम्हें इंसान नहीं बनाया, इसलिए एक इंसान की मोहब्बत के पीछे खुद को ख्वार मत करो। अपने मकसद को छोड़कर फजूल कामों के पीछे मत पड़ो। मोहब्बत को तुम फजूल कह रहे हो? फातिम ने अचरपेशों से देखा। बाज दफ़ा ये फजूल चीज़ के अलावा और कुछ नहीं लगती। लेकिन तुम भी तो एक लड़की की मोहब्बत में मुब्तला होकर ही अल्लाह से मिले थे। अल्लाह से मिला था, उससे दूर नहीं हुआ था। वो कुछ जताकर बोला तो फातिमा ने सर झटक दिया। वो मजीद गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ, चलता हूँ मैं। शाह साहब याद फरमा रहे हैं, काफ़ी फिक्रमंद हैं तुम्हारे लिए। जानता हूँ वो मुझ पर जोर दे रहे हैं कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ। तो क्या तुम चले जाओगे? ये हो सकता है। मैं चला गया तो तुम्हारी दुनिया तो बेरंग हो जाएगी। मुस्कुराकर उसे कहते हुए वो देखते ही देखते हवा में तहलील हो चुका था। दारियान गहरी सांस लेकर वापस जाने के लिए पलटा तो ठिठक कर रुका। वो सफ़ेद चेहरा लिए नमक का मुजस्मा बनी उसे ही देख रही थी। उसके गुमान में भी नहीं था कि माशा वहां खड़ी होगी। मेहमान ने बिजनेस से रिलेटेड कुछ किताबें लाने को कहा था दारियान से, लेकिन अपनी जॉब की मसरूफियत की वजह से उसका जाना ही नहीं हो पा रहा था। और फिर दारियान खुद भी इतना मसरूफ रहता था कि हर बार भूल जाता था। आज उसने मेहमा को मैसेज करके बता दिया था कि वो उसकी किताबें ले आया है और शाम तक भिजवा भी देगा, लेकिन उसे सब्र नहीं हुआ तो उसने माशा से कह दिया कि जाकर उससे किताबें ले आए। खुद वो ऑफिस के किसी काम में मसरूफ थी। ऑफ डे होने के बावजूद भी वो किसी फाइल पर काम कर रही थी। वीकेंड्स वो माशा के साथ ही गुजारती थी। आज भी अपना सामान और लैपटॉप लिए वो उसी के घर पर मौजूद थी जब उसे फिर अपनी किताबें याद आ गईं। उन्होंने कहा है कि वो शाम को भिजवा देंगे, तुम सब्र कर जाओ। मैं सब्र नहीं कर सकती, मेरा काम रुका हुआ है, मुझे कुछ ट्रांजैक्शन समझ नहीं आ रही हैं। तो तुम अपने बॉस से पूछ लो। माशा का कोई इरादा नहीं था दारियान के पास जाने का। तुम जा रही हो या नहीं? नहीं। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती माशा? उसके चेहरे पर रो देने वाले तासुरात थे। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, जा रही हूं मैं। उसे घूरते हुए वो नाचार उठ खड़ी हुई, जबकि वो पीछे फिर से हंसते हुए अपने काम में मसरूफ हो गई थी।
ईशा भाभी ने उसे कहा था कि दारियान घर पर नहीं है, इसलिए वो खुद ही जाकर उसके रूम से अपनी मतलूबा किताबें उठा ले। उसकी गैर मौजूदगी का सुनकर वो भी पुरसुकून से उसके रूम में आ गई थी। नफासत से उसके मिजाज के मुताबिक सजा कमरा काफी कुशादा और आलीशान सा था। एक तायराना से निगाह सारे में डालते हुए उसे राइटिंग टेबल के पास पड़ी वो किताबें नजर आ गई थी, जिन्हें उठाकर वो पलट रही थी। जब भी कुछ आवाजें उसके कान में पड़ी, वो चौंक कर रुकी। भाभी ने तो कहा था कि दारियान घर पर नहीं है, लेकिन फिर ये बालकनी में से किसकी आवाजें आ रही थी? वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर धीमे कदम उठाकर वहां बढ़ गई। वो दारियान ही था जिसकी पोस्ट थी माशा की जानिब, लेकिन दूसरे स्याह लिबास वाले शख्स को वो नहीं जान पाई थी, क्योंकि वो भी रुख मोड़े खड़ा था। आज से पहले तो उसने कभी दारियान के किसी दोस्त को घर में आते नहीं देखा था। अभी वो सोच ही रही थी कि देखते ही देखते वो उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। वो हक्का बक्का खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे नजर का धोखा हुआ है उसे, लेकिन वो कोई धोखा नहीं था। दारियान अकेले ही खड़ा था उसके सामने। वो कहाँ गया? माशा के लबों से सरसराती सी आवाज निकली। हैरत की ज्यादती से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका जहन वो सब कबूल नहीं कर पाया था। उसका सर घूमने लगा था। इससे पहले कि वो जमीन बोस हो जाती, दारियान ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया था। वो हैरत से उसे तक रहा था, कहीं उससे फातिम को तो नहीं देख लिया। डैम इट, माशा आंखें खोलो। उसका गाल थपथपाते हुए वो काफी फिक्रमंदी से कहे जा रहा था, लेकिन वो बेसुध थे। उसके गाल पर रखी दारियान की उंगलियां साकेत हुई। उसकी नजरें माशा के चेहरे पर झुकी थी, लेकिन उसकी सोचें कहीं और परवास कर गई थी। वो उस रात में जा पहुंचा था जब बरसती बारिश की तेज बौछार ने उसे भिगो डाला था। तूफानी बारिश और कड़कड़ाती बिजलियों ने ढा रखा था। वो हर तरफ से बेनियाज उस लड़की को पुकार रहा था जिसका चेहरा यकबस्ता था। उसकी जिंदगी से भरपूर आंखें उस समय बंद थीं। वो दीवाना वार उसे पुकार रहा था। दारियान को धड़कनों की रफ्तार मध्यम पड़ने लगी। आज इतने अरसे बाद वो फिर उसी जज्बे को महसूस कर रहा था। क्या वक्त अपने आप को दोहरा रहा था? उस समय तो वो लड़की उसकी जान से अजीज मोहब्बत थी, और इस लड़की में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जाने क्यों उसके दिल की रफ्तार मध्यम पड़ने लगी। दारियान भाई, लड़की को बेहोश कर दिया आपने? दाइम की हैरत में डूबी आवाज उसे फिर से होश की दुनिया में खींच रही थी। मुझे नहीं मालूम इसे क्या हो गया है। उसका अंदाज कुछ घबराहट लिए हुए था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। भाभी को बुला कर लाओ जल्दी। माशा को अपने बेड पर लेटाते हुए उसने दाइम को हुक्म जारी कर दिया। मैं उन्हें क्या कहकर बुलाने जाऊं? क्या आपने माशा को बेहोश कर दिया? दाइम ने उलझन से पूछा तो दारियान ने तेज नजरों से उसे देखा। फजूल मत बोलो और जाकर बुलाओ उन्हें। ठीक है भाई, जा रहा हूं। उसके गुस्से से खाइफ होते हुए वो फौरन ही रूम से निकल गया, जबकि वो दोबारा उसकी जानिब देखने लगा जो होश खर्च से बेगाना थी। घुटनों में सर दिए बैठी वो न जाने कब से रोने में मसरूफ थी। उसे याद नहीं था कि किसी बात पर वो इतना रोई हो कभी। एक जानी पहचानी सी खुशबू उसके अतराफ में बिखरी थी जो उसके अंदर भी बसी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने सर नहीं उठाया। उसके सामने बेड पर बैठते हुए फातिम ने अपना हाथ उसके सर पर रखा तो उसने आहिस्ता से सर उठाकर बिना उसे देखे हाथ की पोस्ट से भीगे गालों को साफ किया। क्या तुम अपने वादे पर कायम रह पाओगी? उसका सवाल बरीजे को अंदर तक तोड़ गया था। उसका जवाब तो उसके पास भी नहीं था। मुझे नहीं मालूम, भुराई हुई आवाज में कहती वो उसे देखने से गुरेज बरत रही थी। फातिम की आंखों की शोलों की तपिश बढ़ती जा रही थी। इस मासूम सी लड़की की हालत का जिम्मेदार वो खुद को तस्वुर कर रहा था। वो उसे दुखों और तकलीफ की आग में नहीं झोंक सकता था, लेकिन अपने दिल के हाथों बेबस था। ना वो उसे छोड़ सकता था और ना ही उसे अपना सकता था। रोना बंद करो, फातिम ने नरमी से कहते हुए अपने गर्म हाथ उसके गाल पर रखा तो बरीजे ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जिसका दिल धड़कना भूल चुका था। बरीजे की भीगी आंखों में उसका दिल जाने कितनी बार डूब कर उभरा था। उसे तो शायद एहसास ही नहीं था। तभी बरीजे ने हिचकिचाते हुए उसका हाथ अपने चेहरे पर से हटाया जो पुरतपिश सा होकर दहकने लगा था। व्हाइट कुर्ता शलवार पर ब्राउन कोट पहन वो पुष्ट पर बाजू बांधे छत पर खड़ा चांद को तक रहा था। कुशादा सी छत पर वो अकेला खड़ा था, जहां लाइट्स का ज्यादा इंतजाम नहीं था। सिर्फ थोड़ी बहुत रोशनी थी, लेकिन बाकी रोशनी का इंतजाम चांद ने कर रखा था, जिसकी शफाफ रोशनी ने हर शय को मुनव्वर कर दिया था। आसमान बिल्कुल साफ था। कुछ देर पहले उसे एक मैसेज मौसूल हुआ था जिसमें वो उसे छत पर मिलने के लिए कह रही थी। सबके बीच से उठकर आना उसके लिए आसान ना था, लेकिन पीछे के रास्ते से आने में वो कामयाब हो चुका था। उसकी समातों में किसी के आने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहा हो। अनस ने आहिस्तगी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका इतना एक एक कदम वो अपने दिल पर पड़ता महसूस कर रहा था। वो जैसे ही आकर रुकी तो अनस की पुश्त को देखकर भोली सांसों को हमवार करने लगी। जब भी वो उसकी जानिब रुख मोड़ गया,
सुर्ख और सफेद इम्तिजाज के जोड़े में सुर्ख दुपट्टे से सर ढके वो उसके सामने थी, जिसे देखकर लग रहा था जाने कितने अरसे बाद वो उसका चेहरा देख रहा हो। एक आसूदा सी मुस्कुराहट अनस के लबों पर उभरी थी। रेशाम को देखने के बाद उससे अपने मुर्दा तन में फिर से तवानाई दौड़ती महसूस हुई। अब इसके सिवा अनस को कुछ दिखाई भी तो नहीं देता था। खैरियत है? आपने चोरी छुपे मिलने के लिए बुलाया? सबके सामने बुलाने की जुर्रत करती तो फिर कोई तूफान उठ खड़ा होना था। आप एक बार ये जुर्रत करती तो सही। आपकी तरफ बढ़ने वाले सारे तूफानों का रुख मैं अपनी जानिब मोड़ लेता। फिलहाल तो इस तूफान को संभालो। उसने खाकी लिफाफा अनस की जानिब बढ़ाया, जिसे उसने नासमझी से देखते हुए थाम लिया। खुलानामा। कागज निकालकर उसका मतन देखने के बाद उसने अबरू उठाकर रेशाम को देखा। साइन नहीं किया आपने? मैंने सोचा साथ में करेंगे इसीलिए ले आई। वो जल कर बोली तो वो बेसाख्ता हंस पड़ा। वेल, मुझे देखकर काफी अच्छा लगा कि आप अपनी बात से पीछे नहीं हटी। बिलफर्ज अगर मैं साइन कर देती तो, अगर मैं अपनी बात से मुकर जाती तो पुरसोच नजरों से उसे देखते हुए मजबूती से 2 कदम उसकी जानिब बढ़ाए। बिलफर्ज अगर आप ऐसा करती तो मैं आपको जान से मार देता। हैं? वो बेसाख्ता पीछे हटी। तुम सच में मुझे मार देते? बिल्कुल, मैं सच में आपकी जान ले लेता। अच्छा, मेरे घर में खड़े होकर मुझ पर ही रोब दिखा रहे हो? माइंड इट प्रिंसेस, ये अब मेरा भी घर है। इस बात का फैसला नहीं हुआ अभी कि तुम्हें कबूल करके इस घर का हिस्सेदार बनाना भी है या नहीं। मुझे आपने कबूल कर लिया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मजीद मुझे किसी और की परवाह नहीं। तुम्हें उनकी परवाह करनी पड़ेगी। कम से कम मेरे बाबा से तो अपने ताल्लुकात ठीक कर ही सकते हो। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही कर लूँगा। इतनी फर्माबरदारी तब दिखाते जब यूसुफ बने हुए थे। मेरा खून तो न जलता इतना। जब आपको मालूम था कि यूसुफ आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ी रहती थी? उसके इस्तफसार पर रेशाम ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। गलत, यूसुफ मुझ में इंटरेस्टेड था, मुझे मालूम है। ये और बात है कि हमेशा लाताल्लुकी और सख्ती का लिबा दौड़े रखता था। उसका हिसाब तो मैं अच्छे से लूंगी तुमसे। मैं हर हिसाब देने को तैयार हूँ। सीने पर हाथ रखे उससे भी सर को हल्का सा खम देकर जवाब दिया। बाबा से मिलने नहीं आई आप? ताया जान ने मना किया था तुम्हारे और उनके सामने जाने से। रूम में ही बंद रहने का हुक्म दिया था। जमीर चाचू ने कुछ नहीं कहा? अनस ने संजीदगी से पूछा। उन्हें भी यही ठीक लगा। ताया जान की फिक्र नहीं है मुझे। तुम बस बाबा से बात कर लो, उन्हें मना लो, वरना वो मुझे फोर्स करेंगे पेपर साइन करने के लिए। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। इतने वसूख से कैसे कह सकते हो तुम ये बात? जब आप यहाँ पर मौजूद ही नहीं होंगी तो फिर कैसे कोई आपको प्रेशराइज करेगा? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? उसको फिर खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। आप मेरे साथ चलें मेरे घर? कभी भी नहीं। वो बेदक उठी। तो मेरे घर वालों को राजी करो। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ दूसरी बार घर से नहीं जाऊंगी। अगर वो राजी ना हुए तो फिर भूल जाना मुझे। ओह, यह तो नामुमकिन है। तुम्हारे पास अब यही ऑप्शन है, या तो मुझे भूल जाओ या मेरे घर वालों को मना लो। मेरे पास तीसरा ऑप्शन भी है। तीसरा ऑप्शन? आप मेरी बीवी हैं। आपको यहाँ से ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अगर मैं खुद ही ना जाना चाहूँ तो आपको जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊँगी, और अगर ज़बरदस्ती करोगे तो तब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। बल्कि ताया जान से कह दूंगी कि मुझे इस शख्स से अलहदगी लेनी है और फिर सलार भाई से भी शादी कर लूँगी। और फिर मैं आपको और आपके सलार भाई को गोली मार दूंगा। कैसा रहेगा? उसकी बात काटकर वो 2 बदो बोला तो रेशम ने नाराजगी से उसे देखा। कम से कम आपको मेरे सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके लबो लहजे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे कितनी गिरा गुजरी थी रेशम की बात। उसके नाजुक से हाथ को पकड़कर जोर से दबाते हुए वो बोला तो रेशम ने दर्द से बिलबिलाते हुए अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालना चाहा, लेकिन वो शायद छोड़ने पर आमादा नहीं था। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी आइंदा ये बात। हाथ छोड़ो मेरा। यूसुफ, मैंने कहा हाथ छोड़ो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। वो वैसे ही यकटक उसे देखे जा रहा था। क्या उसे इतनी बुरी लगी थी बात? उसने हैरानगी से उसकी संजीदा और सपाट नकूश को देखा। बिना कुछ कहे उसका हाथ छोड़कर वो फिर से रुख मोड़कर आसमान पर महवे इस्तिराहत चांद को तकने लगा। पुष्ट पर दोनों हाथ बांधे वो उसकी वहां मौजूदगी से लाताल्लुकी जाहिर करते हुए अपनी नाराजगी का इशारा दे रहा था। तुम तो नाराजी हो गए। रेशाम उसके ठीक सामने आ खड़ी हुई थी। अनस ने चांद से नजरें हटाकर सामने खड़े अपने चांद को देखा तो महसूस हुआ उससे बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, कोई जान से प्यारा नहीं। इस तरह की बातें दोबारा करेंगी तो एक लम्हा नहीं लगाऊंगा आपको यहाँ से ले जाने में। ठीक है भाई, नहीं करूंगी दोबारा। ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ। रेशाम ने कहते हुए सचमुच उसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए थे, जिन्हें एक नजर देखने के बाद वो सर झटक कर हंस पड़ा था। जब सारे मामला तय पा गए हैं तो एक और फैसला भी हो जाना चाहिए ना।
वजाहत गाजी की आवाज उभरी तो सबने ही चौंक कर उन्हें देखा। कैसा फैसला? तुम अपने बेटे से कहो रेशम को डिवोर्स दे, वो मेरे बेटे से मंसूब थी। वो बिना किसी को देखे सिर्फ रजा गाजी से मुखातिब थे। पहले की बात और थी वजाहत, निकाह जैसे भी हालात में हुआ हो, मैं उसे खत्म करने के हक में नहीं हूं। सादत गाजी की जानिब से दिया गया वो जवाब सभी नफूस को वर्ते हैरत में डाल गया था। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? जमीर गाजी भी हैरत ज़दा थे। माजरत के साथ वजाहत भाई, लेकिन मैं अनस से कभी नहीं कहूँगा रेशम को छोड़ने के लिए। इस निकाह को ख़त्म करने के और भी कई तरीके हैं। तुम तो खुद पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें ज़्यादा बेहतर मालूम होगा। रजा गाजी को देखते हुए वो जहरखंद लहजे में बोला, बेशक, लेकिन आपने निकाह नामा शायद गौर से पढ़ा नहीं। उसमें रेशम के पास खुला लेने का हक नहीं है, इसलिए उनकी तलाक सिर्फ उसी सूरत में होगी जब अनस ऐसा चाहेगा। एक झटका ही तो लगा था सबको। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? जमीर गाजी साथ गुस्से में अनस से मुखातिब हुई, जो लाताल्लुक़ सा सादत गाजी की बराबर वाली नशिस्त पर बैठा था। इस हवेली में तुम्हारी हैसियत को मैं तभी कबूल करूंगा जब तुम्हारा बेटा रेशम को तलाक देगा। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ तुम सब। बाबा, आप इनकी वजह से हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। मुझे बेहतर मालूम है किसके साथ क्या करना है। फिलहाल इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। मैं इस निकाह को नहीं मानता बाबा। निकाह दोबारा भी किया जा सकता है, लेकिन आइंदा कोई मेरे सामने अनस और रेशम की अलहदगी के बारे में बात नहीं करेगा। सादत गाजी काफ़ी सख्त लहजे में उन सबको बावर करवा रहे थे। बाबा ने तुम्हें इस हवेली में हमारे बराबर की हैसियत दी है, लेकिन तुम ये मत समझना कि जो जी में आएगा वो करोगे। बाबा के अलावा कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा, क्योंकि तुम कौन सा हमारे सगे भाई हो। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने मुझे अपना भाई तस्लीम कर लिया, बेशक सौतेला ही सही। उनके मुकाबले में वो काफ़ी नरमी से बात कर रहे थे। देखो रज़ा, हमें तुमसे कोई मसला नहीं है। बाबा तुम्हें यहाँ रहने को कहें या अलग से कोई घर तुम्हारे नाम कर दें, लेकिन हकीकत यही है कि हम में से कोई भी तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। वजाहत गाजी तरफुर से दो टूक लहजे में कह रहे थे, जबकि हाथ की मुठ्ठियाँ भींचे वो खुद पर बमुश्किल जब्त किए हुए था। मैं इसीलिए बाबा को यहाँ नहीं लाना चाहता था। उनके आने से कोई भी खुश नहीं है, बल्कि सिर्फ इनसिक्योर फील कर रहे हैं। बेहतर है कि हम यहाँ से चले ही जाएं। ऐसे क्यों कह रहे हो अनस? जो हैसियत इन सब की है वही तुम्हारी और रज़ा की भी है। इस हवेली में आने और रहने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपकी सगी औलाद को ये सब गवारा नहीं। तुम्हें इनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सालार और अबीर दोनों ही अबरू उठाए उसे देख रहे थे, जो कुछ नाराज और उखड़ा सा दादा जान से गुफ्तगू कर रहा था, और वो उसे मोहब्बत से देखते हुए नरमी से जाने क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। न जाने कौन सा सहर फूंका है इसने। वो तलखी से बोला तो अबीर ने उसे देखा। खून की कशिश है, पहली बार अपने बेटे और पोते से मिले हैं, इसलिए ज़्यादा पुरजोश है। ऐसे भी क्या खुशी जो इनकी वजह से हमारी हक तलफी कर रहे हैं। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है सालार, अभी इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, हम बाद में इनसे बात करेंगे। अबीर ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए सालार के साथ साथ फाज और आशिर को भी वहां से उठने का इशारा किया।